May I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. Please बैठिए. Please. So Ankit, what was your optional subjects in the mains examination? Sir, my optional subject was Constitution and Admin Law, Okay. Hindu and Family Law, and Law of Contract and Tort. सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट, इस पर एक रिसेंटली अच्छा जजमेंट आया था, उस जजमेंट का नाम बताइए भाई. Sir, Vinita Sarma. चलिए ठीक ठीक ओके ओके ओके. क्या था उस जजमेंट में? Sir, in that case, it was held that the daughter of a co-partner shall have the right over the property of a co-partner since birth. स्त्री संपदा इज कन्वर्टेड इनटू स्त्री धन बाय विच एक्ट? Sorry, sir, I am not able to. सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कहता है? Sir, it says about the property which is in the possession of a woman shall be in that property such woman shall have the absolute right over such property. यही है स्त्री धन. ठीक है, चलिए ठीक है. रेस जेस्टे बताइए जरा. Sir, the principle of res gesta is a Latin term which means things done, and it is given under section outlines under section 6 of the Indian Evidence Act 1872. As far as I am reading section 6, there is no term res geste is used in section 6. Yes, sir. Sir, this concept, sir, the principle is outlines under section 6. It is not specifically mentioned about the term res gesta, but the principle which the res gesta says, that principle is outlines under section 6 of the. Can the DD of one person may be used as the DD of another person? Sorry, sir. Dying declaration of one person can be used as the dying declaration of another person? Sir, as far as I am able to recall, I think no, sir. Okay. Can the statement recorded under section 161 of CRPC used as dying declaration? Yes, sir. Okay, ठीक. Sir, जी please. सर. अंकित, what is difference between legal insanity and medical insanity? Sir, legal insanity and medical insanity, the law recognizes the legal insanity, sir, and it is outlines under section 84 of the Indian Penal Code. It says that legal insanity denotes such insanity in which the person do not able to form the rational judgment that whatever he is doing, he do not understand the consequences of his act. Okay. And sir, medical insanity refers to such mental. Sir, it denotes it is examined by the medical practitioner, and on the basis of such a report, medical report, the medical insanity is. Okay. ये बताइए, can minor be a partner? No, sir. According to section 30 of the Indian Partnership Act, a minor cannot be a partner, but he can be added to the partnership firm for his benefit. Okay. देखिए, जब हम CRPC में सेक्शन 193 की बात कर रहे हैं, तो 193 में हमें ये बताया गया कि जब तक कि कोर्ट ऑफ सेशन को मामला कमिट नहीं किया जाता, वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते. क्या कोई एक्सेप्शन आपको CRPC में देखने को मिलता है? Yes, sir. जी बताइए. Sir, section 199, if I am not wrong, sir, then section 199 of the Code of Criminal Procedure Code. In that case, sir, that is in respect to the defamation case, defamation with respect to president, vice president. In such case, sir, the public prosecutor can direct institute a suit with the prior permission of court in the court of session. Okay. लेकिन जो डेफेमेशन है ये यदि 199 सबसेक्शन 2 की बात कर रहे हैं आप, तो ये सेशन ट्राइबल केस होगा या मजिस्ट्रेट ट्राइबल केस? सर, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. ओके. अच्छा, ये बताइए, एविडेंस एक्ट में जो आइडेंटिफिकेशन परेड है, उसका कंसेप्ट कहाँ देखने को मिलता है? सर, सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस. और इसी के रिगार्डिंग क्या CRPC में कोई प्रोविजन आपको देखने को मिल रहा है? यस सर, दैट इज सेक्शन 54A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल. ओके सर. ओके. अंकित, ये बताइए कि आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और आपके पास एक कपल आता है, वो कहता है कि यार हमें अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना है और ये डिसीजन उन दोनों का है, तो आप किस कोर्ट में कौन सी पिटीशन फाइल करेंगे और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको होगी? सर, आई विल फाइल सच केस इन द फैमिली कोर्ट. ओके.
and sir what पति पत्नी है, दोनों ने डिसाइड किया कि वो साथ रहना नहीं चाहते, ये दोनों का ज्वाइंट डिसीजन है। yes sir आपके पास आए, अब आप कौन सी कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, किस सेक्शन के तहत फाइल करेंगे और उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी? sir I will file in the family court Okay. and the ground will be on the basis of section 13B of Hindu Marriage Act on the ground of mutual consent, divorce on the ground of mutual consent, and sir relevant documents will be sir on the ground sir I do not able to recall the कोई बात नहीं, ये बताइए एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, yes क्या वो इस एफआईआर को चैलेंज कर सकता है? yes sir he can challenge such FIR directly on the high court under section 482 of the Code of Criminal Procedure Code for quashing of such FIR. ओके, और इस 482 का कुछ नाम है सीआरपीसी में? Yes sir, the inherent power of high court is vested in the high court. ठीक है, ये बताइए जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ती है, वो अक्यूज्ड हो सकता है, सस्पेक्टेड पर्सन भी हो सकता है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों कराया जाता है? Sir, the primary purpose was to adduce to take out the relevant evidence that if by examining, by forcing, not sir by forcing, but by compelling such a person for medical examination, the primary purpose was to extract the evidence that can be taken out from such person, like sir in the case of. चलिए, आपसे मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि मुस्लिम लॉ में दो कॉन्सेप्ट है, खुला और मुबारक, Yes sir. क्या होते हैं दोनों? Sir, Khula and Mubarak are both are grounds for divorce, and that is on the basis of mutual consent. Sir, in the case of Khula, in this case, sir, the wife initiates the provision for divorce, and she offers certain consideration to the husband, and husband gives divorce to such a woman. And in the case of Mubarak, sir, the divorce is the ground of divorce may comes from either of the party. तो क्या इसको म्यूचुअल डाइवोर्स कहा जा सकता है? Yes sir. ठीक है, शुक्रिया सर। अंकित, आप मुझे बताइए, आजकल आपने कीवर्ड सुना होगा AI, Yes sir. अगर इसे जुडिशरी में इसके लाभ लिया जाए तो आपका क्या ओपिनियन है? Yes sir, ये आज के ज़माने में सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सर इसे लिमिटेड उपयोग में ही, क्योंकि ये एक्चुअली एक बोट ही है, तो इनसे भी कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो सर लेकिन ये एक मामले में बहुत अच्छे तरीके से जुडिशरी में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कोई एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है विच इज़ रिलेटेड टू AI, नाम बताएंगे आप? सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज सर सुवास यस, वाज रिलेटेड हाँ, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, सर अनुवाद सर। क्या काम है इसका? सर दैट ट्रांसलेट्स द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट या लोकल लैंग्वेज? लोकल लैंग्वेजेस सर। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? Sir, sexual harassment is defined in section 354A of the Indian Penal Code, and sir, it says that if any person harassed a woman either physically or verbal or by abusing, then such may comes under the sexual harassment case. क्या सेक्सुअल हरासमेंट केवल महिला के खिलाफ ही हो सकता है? Sir, according to section 354A, I think so that is not a gender neutral, and in such case it can only I guess done against. नीति आयोग के बारे में बताइए कुछ। सर नीति आयोग 2014 में स्टेब्लिश किए गए थे, नहीं, 2015। में स्टेब्लिश किए गए थे, और ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करती है, और इसे थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि पॉलिसी मेकिंग में और डिसीजन मेकिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट करती है। किस टाइप की बॉडी है? सर नीति आयोग सर एज फार एज आई एम एबल टू रिकॉल इट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी आई थिंक सर, सॉरी। ओके, आप मुझे बताइए, एक आर्टिकल है 343। Sir, 343, Article 343 of Constitution of India says about the official language of the India. ओके, अच्छा, बहुत कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बिहार को जो है ना स्पेशल दर्जे की बात
चल रही है, डिमांड होती है, यहाँ के पॉलिटिशियंस भी करते हैं, उससे बिहार को फ़ायदा क्या होगा? सर इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर स्पेशल दर्जा अगर बिहार को मिलता है तो कुछ कंट्रीब्यूशंस जो है इन्हें मॉनेटरी टर्म्स में सेंटर से असिस्ट किए जाएंगे, और पॉलिसी मेकिंग वगैरह में भी सर इन्हें, और डिसीजन मेकिंग में भी इन्हें असिस्ट किए जाएंगे सेंटर के द्वारा बाय कंट्रीब्यूटिंग बाय मॉनेटरी टर्म्स। तो आपको नहीं लगता कि फिर आगे इन फ्यूचर हमारी इंटीग्रिटी, सोवेनिटी, इन सब पर फर्क पड़ेगा? बिहार आज डिमांड कर रहे हैं, कल उत्तर प्रदेश डिमांड करेगा, आपको नहीं लगता कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा? सर ये सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है डिसाइड करने की, तो सर वो अगर उन्हें लगता है, क्योंकि वो पहले से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेट को स्पेशल दर्जा ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल दिया जा रहा है, तो सर आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन सच फैक्टर, इफ द पार्लियामेंट थिंक्स दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर अ स्टेट लाइक बिहार टू ग्रांट सच। प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताइए कुछ। सर प्राइवेट डिफेंस एक इज ए डिफेंस गिवन टू ए पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज पर्सन एज वेल एज द प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ द अदर पर्सन। मुझे ग्राउंड बताइए आप, प्राइवेट डिफेंस में आप अपने बचाव में कब किसकी हत्या, किसको मार सकते हैं? सर दैट इज गिवन इन सेक्शन 99 ऑफ द इंडियन पेनल कोड ऑन द ग्राउंड सर इफ द ओके, आप मुझे बस एक ही बताइए, आपने अपनी हॉबीज़ में लिखा है इन फ्री टाइम आई यूजली टू मेडिटेशन। यस सर। मेडिटेशन क्या होता है? सर मेडिटेशन सर एक प्रोसेस है जिसमें कि फोकस किया जाता है किसी चीज़ पे, ताकि माइंड को रिलैक्सेशन और माइंड को कूल और पेशेंस। तो फिर योगा क्या है? सर योगा एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मेडिटेशन प्रैक्टिस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू यू मेडिटेशन एंड योगा बोथ आर प्रोसेस, okay, what is the difference between? Sir, meditation. Sir, in meditation, we usually focus on our body sensations and bodily feelings, and by yoga we can do meditation. Okay, please sir. Section 40 of Indian Penal Code define the word offence, correct? Yes sir. And there are 3 paragraphs, correct? Yes sir. What is paragraph number 2? Sorry sir, I am not able to recall. ठीक है, बस मुझे एक छोटी सी बात बता दें कि सेक्शन 76 to 106 of Indian Penal Code deals with the general exception. Whether these general exceptions are applicable only to the offences of Indian Penal Code or the other special penal laws. Sir, it can be applied to with respect to other penal laws. How? कहाँ लिखा है? Sir, if I am correctly remember, then section 6 of Indian Penal Code. No. This is section 40 sub clause 2. ठीक है? Sorry sir. अब जा सकते हो। Thank you sir. Thank you sir. अंकित जी बैठिए। कैसा लग रहा है आपको अभी? ठीक, अच्छा लग रहा है सर। कहाँ काम करने की ज़रूरत है अभी? सर अभी रिवाइज करने की ज़रूरत है मुझे पहले, वेरी गुड। और सर मुझे कुछ बेसिक चीज़ों पे काम करना है। जैसे अपने हॉबी पे मुझे वर्क करना है सर। हॉबी आपने बहुत बड़ी लिख दी, और इसमें मेडिटेशन और योगा। मेडिटेशन एक इंटरनल प्रोसेस होता है, यस सर। और योगा अपने आप में एक सब्जेक्ट है। यस। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि योगा इज सब्जेक्ट और मेडिटेशन सब सब्जेक्ट मान लीजिए उसको, या सब क्लास मान लीजिए, उसी का प्रोसेस है ना। तो इसे डिफाइन करने में आपको थोड़ी सी गड़बड़ लगी, इसको प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और योगा का पार्ट ही होता है मेडिटेशन में, यस। आप समझ के होंगे ना। बाकी नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, अदर सब्जेक्ट में मैंने पैनलिस्ट से बात कर ली है, तो नॉलेज आपकी अच्छी है, डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आई कॉन्टेक्ट जब सब कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप सबको एड्रेस करिए प्लीज़। ओके सर। हाँ, मतलब मान लीजिएगा सर पूछ रहे हैं आपसे, तो सर को ही मत देखिएगा, थोड़ा बहुत, हाँ बस ठीक है। बॉडी लैंग्वेज गुड, ड्रेस आपका गुड है, और वॉइस गुड है, इसके साथ साथ नॉलेज गुड है आपकी, ओके सर। से भी अच्छी है, गुड है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो जितना हो सके लीगल इश्यूज हैं आपके, बिहार की बेसिक जानकारी थोड़ी सी,
उसको आप कर लीजिएगा। हालांकि मैंने पूछा था आपसे श्वास के बारे में, आपने परफेक्टली बता दिया था। शब्दों का चयन करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें कि वही बताएं जो एग्जैक्ट पूछा गया है। ओके सर। जैसे लोकल लैंग्वेज मैंने पूछा था आपसे, ठीक है। बाकी ओवरऑल वेरी गुड।